السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں پیش ہے ہماری خاص محفل مشاعرہ۔ ارے جنید میاں، یہ دنیا کے ان جمگٹوں اور جمیلوں سے نکل کے آپ کے پروگرام میں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کے اس بہانے آپ جیسی فقید المثال شخصیت کے ساتھ چند لمحات گزارنے کا موقع میسر آ جاتا ہے، ذرا نوازی آپ کی اور آپ کی پرمغز فکر انگیز اور علم و حکمت کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی گفتگو سے فیض یاب ہونے کا موقع میسر آتا ہے۔ یہ اس فقیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ ارے میاں، کہاں ملتے ہیں اب آپ جیسے ادب پرست، ادب نواز، ادب دوست احباب۔ اس حد تک نایاب ہو گئے ہیں کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے کیا، چراغ رگڑنے سے بھی نہیں حاضر ہوتے۔ ارے دھڑکن میاں، لفظ با لفظ یہی تعارف آپ نے کینیڈا سے آئے ہوئے مہمان شاعر امتیاز پھل جھڑی کا نہیں کروایا تھا؟ ارے بھائی، وہ بھی مہمان ہیں، ان کی بھی عزت ہمارے پہ فرض ہے۔ دھڑکن بھی ہے، مہمان شاعر آئے تھے تو ان کو ساتھ ہی لے آتے شو میں، اس محفل کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ دیکھیے، اگر آپ کا دعوت نامہ 2 ہفتے پہلے ہمیں موصول ہوتا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا۔ وہ جا چکے ہیں، یہاں بڑے مصروف دن گزارے انہوں نے۔ کبھی زخمی میاں ان کو لے کے آباری ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں، کبھی شمیم میاں انہیں پی سی میں کھانا کھلا رہے ہیں، اور کبھی تمنیا میاں ان کی ہالیڈے ان میں خاطر تواضع کر رہے ہیں۔ وہ سارے 5 سٹار ہوٹلز، اس کا مطلب ہے آج کل آپ لوگوں کے مالی حالات مستحکم ہیں۔ نہیں جنید میاں، امتیاز پھل جڑی بڑے مستحکم ہیں۔ ہم نے تو صرف بتانا ہی ہوتا ہے نا کہ یہ آواری ہے، یہ پی سی رہا، اور یہ رہا ہالیڈے۔ یہاں کا توا قیمہ بہت مشہور ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ اچھا دھڑکن میں نے دیکھا ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی شعراء ہیں نا، ان کو پاکستان میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے، صرف اس لالچ میں کہ یہاں کے میزبان جو ہیں اس چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ واپس جا کے ان کو وزٹ ویزے پہ بلائیں گے۔ جی، یہ سارے معاملات وہ ہم سے بھی طے کر گئے ہیں۔ اب ہم سارے دوست مل کے جا رہے ہیں وہاں ادبی محفل سجانے کے لیے، کینیڈا۔ ایک ہفتے سے ہم شہروں کے نام یاد کر رہے ہیں، وینکوور، مونٹریال، ٹورانٹو، کیلگری۔ جی 4 محفلیں سجیں گی، اور ماشاءاللہ ہم سب کو چاروں شہروں کے نام یاد ہو چکے ہیں۔ لیکن دھڑکن میں دیکھ لیں، کرونا پھیلا ہوا پوری دنیا میں۔ ہاں، وہ تو ہے، مگر اب موقع بھی تو یہی مل رہا ہے نا۔ وہاں باہر کا مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ شعراء کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، کرونا کا تیر کے جانا ہے۔ ایس او پیز کا خیال رکھیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حساب لگا لگا کے عمر بیت گئی، پہلی دفعہ موقع آیا تو ایسے الفاظ نہ ادا کیجئے۔ اسی دنیا میں کرونا ہے، اسی دنیا میں سونا ہے، اسی دنیا میں کرونا ہے، اسی دنیا میں سونا ہے، خود ہی سوٹ میلا کر کے خود ہی دھونا ہے۔ تباہی ہے، تباہی۔ ہائے ہائے، سارا کینیڈا لوٹ لے گا۔ اسی دنیا میں کرونا ہے، یہیں بیٹھنا ہے، یہیں کھلونا ہے۔ واہ یار واہ، جنید میاں، مسئلہ یہ ہے کہ موقع تو ملے نا۔ اب موقع ملتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بھرے بڑے ہیں ادب و دانش کے ساتھ یہ لوگ۔ دھڑکن صاحب یقین کریں، جو شمیم میاں نے شعر کہہ دیا ہے نا، یہ صرف ایک شعر سننے کے لیے اگر مجھے خاص طور پہ کینیڈا جانا پڑے ٹکٹ لے کے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو چلیے نا، اکٹھے چلتے ہیں، راستے میں ٹریٹمنٹ بھی اچھا مل جائے گا۔ دیکھیں، یہیں سے مشاعرے کی ٹکٹیں بکنی شروع ہو گئی۔ نہیں، میں نے مشاعرے کی ٹکٹ کی بات نہیں کی، میں نے جہاز کی ٹکٹ کی بات کی ہے۔ مشاعرے کی ٹکٹ تو لینی پڑتی ہے نواز۔ اب جس طرح کے شعراء وہ لوگ بلا رہے ہیں، یہ مفت میں سننے کے تو ہے نہیں۔ ارے دھڑکن میاں، جلدی سے لے چلیے ورنہ نقصان کا احتمال زیادہ ہے۔ تمنیا میاں کے دونوں گھٹنے سوج رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے تمنیا کو کہا کہ کینیڈا جا کے سلپ ہو جاؤ گے تو بہت زیادہ دولت کماؤ گے۔ اسی دن سے اپنے گھر کے صحن میں پانی کی بالٹی گرا کے سلپ ہونے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ اچھا ہی، پانی میں تھوڑا تیزاب بھی شامل کر لے۔ تمنیا نے تو 5 کلو ککڑ دال بھی لے لیا کہ جہاز میں بیچوں گا۔ ارے جنید میاں، میں تو کہتا ہوں آپ بھی چلیے، بہت مزہ رہے گا۔
इम्तियाज फुलझड़ी को मिलके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। धड़कन मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके साथ इतने दिनों के लिए कनाडा चला जाऊं तो हस्बैंड कौन करेगा? भाई जब हम सारे उधर होंगे तो आपने अकेले यहाँ खबरें पढ़नी है। तो भाई चले चलिए मियाँ, इम्तियाज फुलझड़ी को मिलके आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। ऐसा खाता पीता आदमी है, बल्कि खाने की किसी वक्त छुट्टी कर लेता है, पीता तो रोज है। तो भाई इसकी जिगर की, फेफड़ों की। अरे भाई जाने दीजिए जुनैद मियाँ, सारी जिंदगी पक्की टट्टी में गुजार दी, पहली दफा कोई मुल्क से बाहर बुलाने का मौका दे रहा है, तो खुदारा ऐसा ना कीजिए जहाज में पहली दफा बैठना है। उसने तो बेचारे ने टिकटें भी भेज दी, सारे मुशायरों का भी बंदोबस्त कर दिया, अब सिर्फ हमने जाना है, कुछ हमारी मदद कीजिए। तो क़यामत आम का खर्चा, आपका हवाई टिकट सारा तो वो अफोर्ड कर रहे हैं, मैंने क्या मदद करनी है आपकी? भाई एयरपोर्ट तक का किराया चाहिए। और हमें एक चेस्टर भी लेके देना है। भाई बताया तो है कि एक नई बोरी खरीदिए, उसको उल्टा पहन के दाएं बाएं से भी मोरे कीजिए और सेंटर में से भी मोरा करके सर निकालिए, उससे गर्म कोई चीज है ही नहीं। जो आप फरमाइश कर रहे हैं ना, इसको अमली जामा पहना के जरा चश्मे तसव्वुर में देखें अपने आप को, अपने चेस्टर पे। मेरा ख्याल है आपको मेरा जाना पसंद नहीं है। भाई उनको क्यों नहीं पसंद? आपने कार्गो वाले जहाज में जाना है, उन्होंने सवारियों वाले जहाज में जाना है। धड़कन मियाँ, सुना है कनाडा बड़ा साफ सुथरा मुल्क है, कहीं हमारी वहाँ तबीयत नाशाद ना हो जाए। यार क्या हो हाय 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 जुनैद साहब, हमारी आमद दीदनी होगी जब हमारी पहली नजर नियाग्रा फॉल पर पड़ेगी। हाँ, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें भी मिला दो लगे उस जैसा। अगर आपने पानी से रंग का सवाल किया तो पानी जवाबी सवाल भी कर सकता है। हाँ, नियाग्रा का पानी सिर्फ जवाबी सवाल पे ही क्या मौकूफ, गाली गलौच भी कर सकता है। बालू इंग्लिश में हमें कौन सी समझ आनी? हाँ ये फायदा तो है। जुनैद साहब, हम तो बहुत परेशान हैं, सुना है कि वक्त का बहुत डिफरेंस है, एक कि वहां रात होती है तो यहाँ दिन होता है तो वहां रात, तो इस तरह तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, अपनी बेगम से बात नहीं हो पाएगी, और हमारी अगर अपनी बेगम से बात ना हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले कौन सा वो दरवाजे में बैठ के आपका इंतजार कर रही होती है? भाभी दरवाजे में बैठा करेंगी, लेकिन अभी दरवाजा लगा नहीं हुआ। धड़कन मियाँ, क्या क्लब में जाने का भी मौका मिलेगा? और क्या हम वहाँ लाइब्रेरी विजिट करने जा रहे हैं? तो भाई मेरा मतलब है कि हम तो उर्दू अदब दानिश के फनकार थे, हमें तो पाकिस्तान की लाइब्रेरियां ही सूट करती है। हाँ, क्लब की चूंकि कोई जुबान नहीं होती तो वो तो विजिट हो सकता है। धड़कन मियां, वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने नामवर शोरा और आपको खास तौर पे एक मुल्क की नुमाइंदगी के लिए वहां पे बुलाया है। हाँ। इतनी घटिया सोचे आपकी। भाई हमने कौन सा उधर टेस्ट खेलने जाना, या वनडे टूर्नामेंट होगा हमारा? शायरी के लिए माहौल चाहिए, और हम इसीलिए तो इम्तियाज फुलझड़ी को पसंद करते हैं। कैसा अच्छा माहौल बना देते हैं कि यकीन मानिए शेर मुंह से खुद ही उमड़ रहे होते हैं। अच्छा जी, कनाडा में कुल 4 मुशायरे आप करेंगे? जी हाँ, 3 तो उर्दू में होंगे और एक पंजाबी भी होगा, विनकूवर वाला। पंजाबी में? हाँ, उधर सुनिया है पंजाबी ज्यादा नहीं देंगे, इसलिए उधर फिर पंजाबियां ही चलेंगे। अच्छा, तो कोई तैयारी व्यारी है? अल्लाह दे हुक्म दे नाल बड़ा अच्छा लिख लिया आएगा एक कलाम। अच्छा, जरा तक तक करती डिगदी टटदी पहुंची जदों बाजार, तक कर दी डिगदी टटदी पहुंची जदों बाजार, लक चाके रक्षा वज्जा लत्था सारा खुमार। जुनैद मियां, वहां जरा थोड़ा सा टच दे दे ना खुमार वाला, तो बहुत दाद मिलती है। अच्छा, अंग्रेजी मुल्कां दे विच करके। अगर पंजाबी शायरी तो आप में से तमन्निया मियां पे खत्म है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जाहिर है पिंडाई पंजाबी है गाय।
अर्ज की है जुनैद साहब, इरशाद। मिट्टी लग गई टहरा नू, मिट्टी लग गई टहरा नू, सज्जन मना लेना हाथ ला के पैरा नू। वाह 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 वाह। ये असल में जुनेद मियां, अगर उधर प्रमोटर ज्यादा टुन हो के ते लड़ पिया ते फिर पेमेंट लेन आस्ते वाला तरीका अपनावांगे। क्या अनुमान है, मिट्टी लग गई टैरा नू, मीटर साडा कटिया गया, ठंड पै गई गैरा नू। जुनेद साहब, मिट्टी लग गई टहरा नू, काम ते उथे करना कोई नहीं, सुते उठांगे दोपहरा नू। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दुकान की निस्बत तो इसको बहुत सारे एडवांटेजेस है ना, कि हाँ किसी जी। एक जगह पे फिक्स नहीं होता, किराया नहीं देना पड़ता, दीगर अखराजात कम हो जाते हैं। जी। जाहिर है कि आप बाज ट्रक ऐसे भी हैं जिसके अंदर 2 या 3 या 4 लोगों के बैठने की गुंजाइश भी होती है। छोटी छोटी उन्होंने टेबल चेयर लगाई होती हैं, या ट्रक के बाहर भी इतनी जगह होती है कि आप वहां पे आप सर्व कर दें। अच्छा गोगा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं खास तौर पे आपकी नजर करना चाह रहा हूँ, मौजू है जी ये फूड ट्रक और फूड वैन्स। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ दफातर के बाहर, खास हाँ तौर पे जी। बाजारों में रश के औकात में आपको कोई वैन या कोई ट्रक नजर ट्रक आता है नजर जिसमें आता है। बिरयानी लगी हुई है, हाँ जिसमें जी। कुछ चाइनीज खाने अब हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा कम है, ये माल रोड पे या लाहौर के अंदर 2-3 दफ्तरों के बाहर ऐसी है वैन वाकई खड़ी होती है जी। जो बिरयानी बेचती हैं या चने नान बेचती हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये फूड के हवाले से सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। यानी जी। $7 अरब के लगभग जो है पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रक फूड का बिजनेस हो रहा है। अच्छा जी। भाई सीधी सीधी बात है, किराया दुकान का पड़ता नहीं हाँ जी। और फिर लाने ले जाने के लिए माल किराया नहीं पड़ता, दुकान में ही आपने रख के सीधा जाके अपने स्टॉप पे खड़े हो जाना है, हाँ। तो बेचना शुरू और कर। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक ही वक्त में कई तरह की जो क्लाइंटेज है उसको आप केटर कर सकते हैं। मसलन आप कोई चाइनीज रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ दुकान किराए पे ले लें या खुद अपनी दुकान खरीद लें, तो पता चलता है जी यहाँ तो गिरदो नवा में उस तरह के जो ग्राहक हैं वो मौजूद ही नहीं नहीं है, है, चाइनीज हाँ जी। पसंद करते हैं। आप किसी या बहुत और कम जगह है। चले जाएं। आप किसी और जगह पूरी की पूरी आप दुकान आपको तब्दील करना पड़ती है। यहाँ पे ये है कि आप एक ही फूड लेके जहां जहां पे लोगों को जरूरत है, मसलन सुबह आप हरीसे की एक देग रखते हैं, आप देखते हैं कि पूरे लाहौर में कोई भी नहीं मांग रहा, तो इधर आ जाए, ये पूरी देग का ग्राहक आपके पास बना बनाया मौजूद है। गोगा जी आ गया जी ट्रक, तो पूरे हरीसा जो है ये शुरू हो जाएगा। तो पैसे कौन देगा? सिर्फ ये ना बिकने से तो बेहतर है और ना। भाई साहब, आप फूड ट्रक उधर को भेज रहे हैं, जिस तरह जो बाकी ठेले शेले होते हैं ना, रेड़ियां शेड़ियां, कारपोरेशन का ट्रक का है तो जिस तरह दौड़ते हैं ना, ये फूड ट्रक गोगे को देख के इस तरह दौड़ते हैं। अच्छा, दुकान की निस्बत तो इसको बहुत सारे एडवांटेजेस है ना, कि हाँ जी। किसी एक जगह पे फिक्स नहीं होता, किराया नहीं देना पड़ता, दीगर अखराजात कम हो जाते हैं। जी। जाहिर है कि आप बाज ट्रक ऐसे भी हैं जिसके अंदर 2 या 3 या 4 लोगों के बैठने की गुंजाइश भी होती है। छोटी छोटी उन्होंने टेबल चेयर लगाई होती हैं, या ट्रक के बाहर भी इतनी जगह होती है कि आप वहां पे आप सर्व कर दें, आपको ज्यादा वेटर नहीं रखने पड़ते। एक आध कोई अगर आपके पास वेटर हो तो आप काम चला लेते हैं, बल्कि ना भी हो तो आप खुद ही डाल के आप खुद सर्व कर लेते हैं। पूरी दुनिया में यही है कि ज्यादातर जो ये फूड ट्रक का बिजनेस है उसमें वेटर नहीं रखे जाते, और एडवांटेज ये आपके अखराजात जो हैं वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बचत है। और आप मुख्तलिफ जो जायके हैं, लोगों के जो टेस्ट हैं, उनको कैटर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक जगह पे आपको पता चलता है जी फलां दफ्तर है जहां पर कोई 1000 लोग काम बिल्कुल सही, उनको 2 बजे खाने का वक्फा होता हाँ है, जी। और फलां जगह वहां पे 1 बजे खाने का वक्फा होता है। आप दोनों जगहों पे ट्रक को लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ। इसी तरह किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर भी लेके जा सकते हैं। अगर आपका मयार अच्छा है खाने का, तो फिर तो लोग आपके ट्रक का या आपकी वैन का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कहते हैं कि कराची के तारिक रोड पे 1963 में ये पहला ट्रक आया था जिसने ये कारोबार शुरू किया था। फिर कराची में कई जगह पे शुरू हो गया, लाहौर में भी कई जगह पे शुरू हुआ, लेकिन ये ऐसा नाम नहीं बना सका। मतलब ऐसा कोई भी ट्रक बिजनेस जिसने अपनी यानी इम्प्रिंट कर दिया और छोड़ दिया, नकूश छोड़ दिए हो, जो पिछले 30-40 साल से, ऐसा बहुत कम होता है। उसकी वजह यह है, मेरा ख्याल बुनियादी तौर पर शायद हमारे यहाँ कोई स्टेटस की दौड़ है।
स्टेटस सिंपल है, हम कोई इस फूड को जो ट्रक पे बेची जाती है, वैन पे बेची जाती है, स्टेटस एक कॉन्शियस है, स्टेटस कॉन्शियस है ना, हर मामले में स्टेटस कॉन्शियस है, इसमें भी हम शायद इसको अपनी तौहीन समझते हैं। अगर हमें कोई फूड पसंद भी आ जाएगी तो हम कहते हैं लो यार मैं ट्रक या वैन के बाहर बैठ के हम लोगों के साथ खाना खाऊं, ये तो पता नहीं कोई गरीबों का है। गरीबों का नहीं है भाई, अगर उसने जो अपने वसाइल हैं वो अपनी फूड पे खर्च किए हैं, दुकान पर खर्च करने की बजाय, रेस्टोरेंट पर खर्च करने की बजाय अपना पैसा जो है अपनी फूड क्वालिटी है, फूड क्वालिटी इंप्रूव किए, तो आपको उसे इनकरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल इधर कुछ प्रॉब्लम है कि वो गाड़ी वाला, वैन वाला, ट्रक वाला, फूड वाला वो जा रहा हो जिधर छुट्टी होने वाली है 1 बजे, तो वो रास्ते में वार्डन ने उसको रोका हो, यार अंदरों पतीले च एक सोहनी बोटी कढ के वार्डन नु दियो, ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ पहुंचो, कोई ऐसी बात नहीं। बात पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं जी सर। असल बात ही ये है कि हम लोग जो है ना जी, ये थोड़ा सा है पॉश काम, हाँ जी, थोड़ा सा ठेले से थोड़ा सा अच्छा काम, अच्छा काम है, हाँ जी इतने बजट के जो लोग हैं ना, जी जी, उनके जहन में 90% तो नौकरी होती है, सही काम वो करना ही नहीं चाह रहे होते। यहाँ पे ये बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के अंदर कि लोग अपना कारोबार नहीं करते। जिसने कोई BA MA कर लिया है या जो कोई गड्डी शड्डी चला रहा है, वो कहता भाजी मैं ठेला ला लूं, हाँ मैं फूड ट्रक ला लूं, लगा लूं, मैं अब यहाँ पे छोटी सी दुकान खोल लूं, खोखा खोल लूं। जबकि मैंने बाहर देखा है खुद बड़े बड़े अच्छे रिजनेबल लोग, एक मेरा दोस्त था जॉन, अच्छा वो मैनचेस्टर में, जी जी, आप यकीन माने कि लड़कियों के स्कूल के बाहर वो इतना सा छोटा सा वो स्टॉल लगाता था, छोटा सा, और वो बर्गर बेचता था छोटा सा, उसने वो तवा सा रखा हुआ था, और वो अच्छा भला अमीर आदमी, उसने बेहतरीन गाड़ी शाड़ी रखी हुई थी। मैं बड़ा हैरान होता था, मैंने कहा जॉन तू इधर तो ये बस ये स्टॉल है तेरा? वो कहता है कि यहाँ पे मैं जितने पैसे रात को लेके जाता हूँ, अच्छा भला बिजनेसमैन नहीं लेके जाता। अच्छा तो यहाँ पे लोग जो है ना जी, वही बात के स्टेटस देखते फिरते हाँ हैं, जी, ये नहीं देखते कि भाई रिजनेबल आमदन Reasonable है, आदमी, हाँ जी। जिस तरह की भी है वो की जाए। अच्छा, तुम्हें पता है शिकागो में हर साल फूड ट्रक फेस्टिवल होता है। अच्छा कमोबेश 1-1.5 लाख लोग जो है 3 दिन उस फेस्टिवल में आके मुख्तलिफ खानों से लुत्फानंदोज होते हैं। देखो ना जरा। और 100 से ज्यादा अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में जो मशहूर ब्रांड हैं फूड ट्रक के, वो वहां पे आते हैं। हमारे यहाँ तो ये ब्रांड डेवलप ही नहीं हुआ ना, लेकिन मैं तो बल्कि आज इस मौके से फायदा उठा के अपने यंगस्टर से कहूंगा कि मुख्तलिफ आइडियाज लेके नौजवान आ रहे हैं, तो हाँ इस जी। शोबे में आए। यहाँ पर बेपनाह गुंजाइश मौजूद है, बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। हाँ, हुक्मरानों की तरफ से भी देखो ना, जैसे तुम बता रहे हो कि फेस्टिवल होता है, हुक्मरानों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी पजीराई होती है लोगों की कि भाई ये बड़ा अच्छा काम है, जरूर हाँ करो, जी, जरूर चाहिए, करो। हाँ। और यहाँ पे लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है कुछ सोचते भी नहीं है इतना, एवं 1-2 ही बातें उनके ज़हन में होती हैं, बहुत सारे रास्ते नहीं तलाश करते मंजिल तक एक पहुंचने। रफ सा आइडिया ये है कि अगर आप वो एक आम जो खुराक बनाते हैं कोई भी खाना, उसकी निस्बत आप ट्रक में या वैन में बेचते हैं जी। तो 30 to 35% वो आपको कम कॉस्ट करता है। बिल्कुल सही। कास्ट कम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, वो जो तुम कह रहे हो कि जिधर आपको पता चलता है कि यहाँ पे इस फूड की ज्यादा डिमांड है, आप वहां जाके तो बैठ, ओए मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मॉनिटर तो देखो, अच्छा जी जी, ओ माय गॉड, दराड़ें पड़ गई स्क्रीन पे। वो देखो यार, दराड़े तो तुम नहीं हो यार, तुम नहीं हो, तो मैं हूँ, नहीं मुझे देख के कह रहे हो यार ये मैं हूँ, उधर देखो जरा मैं हूँ, और यार मैं हूँ देखो। ये तो अजीजी यार तुम तो आते हो तो लगता है कि कोई पता नहीं पतासा पड़ा हुआ है। सर जी बाकी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि ये फेस्टिवल होता है, इसमें सारा खाना फ्री होता है? हाँ जी, वो फेस्टिवल होता है, वो लंगर नहीं होता। फेस्टिवल फ्री होता है, कैसे पूछ रहे हैं? नहीं वैसे भी वहां पे तुम्हें वो घुसने ही नहीं देंगे। सब्जी मंडी में और फेस्टिवल में मझ और गाय का घुसना मनाना है। चलो फिर बेच लें जिथे बेचना, खाना तो वापस ही ले आके जाएंगे। देखो ना ये बदुआएं देनी शुरू हो जाती। एक दरबार पे इसको चावल नहीं मिले तो झोली उठा के कहता है बाबा जी आप इन्नियां बत्तियां बाल के रमे पे हो, सानू चौल भी नहीं मिलन डे, जाओ फिर तुम्हारी बत्ती कटी जानी। तो बाबा जी ने भी इतनी अच्छी हरकत की ना, उसने झोली में चावल डालने की बजाय शोरबा डाल दिया था। लेकिन मैं एक बात कहूँ, गोगा लाइन में नहीं लगता लंगर लेने के लिए, VIP उसका गद्दी नशीन वाकफ है।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कोई ओहदा नहीं है ना सिलेक्टेड वजीर आजम, ओहदा तो वजीर आजम ही है। भाई जिस तरह भी है इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पे तो वही बैठे हुए हैं, वजीर आला और सूबा उन्हीं को ही बनाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि वो इलेक्टेड है ही ये नहीं। मेरा ख्याल है जितने आप सवाल कर रहे हैं आपने सूबा नहीं बनने दे रहे। नाज़रीन आज हमारी महफिल में मौजूद हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। ऐसा बहावलपुर का जलसा कैसा था जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा है, आपकी आंखों ने खुद देखा है, वो बताने वाली कोई बात नहीं है, ना ही जरूरत है। आपने ये मंजर देखा पिछले दिनों जितने भी जलसे हुए हैं, उधर जहां जहां पे बिलावल साहब नहीं पहुंच सके वहां पे आपके इस खादम ने उनकी नुमाइंदगी की है। अच्छा, सदके। वाह जी वाह। और बहावलपुर में भी आपने देखा कि लोगों ने किस तरह पीपल्स पार्टी की और आपके इस खादम की पजीराई की है, जी हाँ। अच्छा, जिससे ये साबित हो गया कि अगली हुकूमत इंशाल्लाह और उसमें वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी जी भुट्टो इस तरह मुंह फाड़ के कह नहीं देते, इशारतन बताते। तो आपका ये खादम जो है ये अल्लाह के फजल से फिर अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, ये जो सारा जलसों में इकट्ठ हो रहा है ये पीपल्स पार्टी का है? नहीं तो और आपका क्या ख्याल है कि लोग उधर फजलुर रहमान साहब से दम करवाने आते हैं? नून लीग कहाँ गई? देखे नून लीग के जो लीडर है वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो आपके लीडर जलसे में नहीं है? तो मैं क्या जलसे का एसडीओ मैं अगर जाता हूं तो मैं लीडर हूं अल्लाह के फजल से, अपनी पार्टी का भी और अपने जलसे का। अच्छा गिलानी साहब, आपने एक मरतबा फिर बड़ी शद्दोमत के साथ मुतालबा किया है जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का, और आपने कहा कि ये सेक्रेटेरिएट से काम नहीं चलेगा, अलग सूबा बनाए। देखे ये जो लोग हैं ये अब लॉलीपॉप नहीं लेंगे, इनको सेक्रेटेरिएट से टरखाना मेरा ख्याल है कि गलत है, ज्यादती है। लोगों को सिर्फ सेक्रेटेरिएट ही अलहदा नहीं चाहिए, सूबा भी अलहदा चाहिए, वजीर आला भी अलहदा चाहिए। आप सूबा बना दे, वजीर आला के लिए अगर आप कहेंगे तो आपका ये खादम आपको वजीर आला का कैंडिडेट घर से दे देगा। सदके। घर से क्या मतलब, बेटों की बात कर रहे हो? तो और मैंने उनको क्या खरादों के काम पे डालना है? तो ये कैसे, वजीर आजम आप, वजीर आला आपके बेटे, एक ही फैमिली में? नहीं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं, वजीर आजम और वजीर आला रह चुके हैं। अच्छा, सारी बातें छोड़े, वही लोग ये सवाल कर रहे हैं गिलानी साहब कि आप इतनी देर वजीर आजम रहे हैं तो उस वक्त आपको जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? देखे हर चीज का एक वक्त होता है और उसे वक्त पे ही होना होता है। सदके। और वक्त से पहले अगर वो चीज की जाए तो वो नुकसानदेह हो सकती है। जिस तरह आप ये कभी भी नहीं करते कि हंडिया चढ़ाते ही उसमें धनिया और टमाटर फेंकते हैं, अच्छा, या उसको पानी को ही तड़का लगाना शुरू करते हैं। पहले गोश्त भूनना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आलू डालने पड़ते हैं। जब गोश्त गल जाए तो उसको फिर तड़का लगाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा तली के ऊपर रख के तो चेक करते हैं। सदके सदके तली तू। इधर चाटना जिधर मैं पाया से। तो बात ये है जुनैद भैया कि ये धनिया और टमाटर जो हैं ये सूबा और वजीर आला है, इनको एंड पे ही डाला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को धनिया और टमाटर अपोजिशन में जाके क्यों याद आते हैं? देखे आप हमें सुबह वजीर आजम बना दे, हम खुद बना लेते हैं वजीर आला, अच्छा, खुद बना लेते हैं सूबा। भाई अब जब वक्त आया है सूबा और वजीर आला बनाने का तो उस वक्त पीटीआई का वजीर आजम है, अब हमने उनको ही मुतालबा करना है। जरदारी साहब या बिलावल साहब तो ये सूबा और वजीर आला इस सिचुएशन में बनाने से नहीं। लेकिन आप तो इमरान खान को वजीर आजम मानते ही नहीं है। देखे हम वजीर आजम तो मानते हैं मगर सिलेक्टेड वजीर आजम मानते हैं, इलेक्टेड नहीं मानते। लेकिन ये तो कोई ओहदा नहीं है ना, सिलेक्टेड वजीर आजम, ओहदा तो वजीर आजम ही है। भाई जिस तरह भी है इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पे तो वही बैठे हुए हैं, वजीर आला और सूबा उन्हीं को ही बनाना चाहिए। लेकिन आना कि वो इलेक्टेड है ही ये नहीं। मेरा ख्याल है जितने आप सवाल कर रहे हैं आपने सूबा नहीं बनने दे रहे।
اور جو وزیر اعلیٰ ہم نے تیار کیا ہوا ہے وہ بیچارہ ادھر ہی رہ جائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ناتی توتی رہ گئی تھے منہ تے مکھی بہ گئی. ابھی جب میں باہر نکل رہا تھا تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ ابو اگر پیچھے سے وزیر اعلیٰ بنانے کی کال آ گئی تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, اب ماشاءاللہ تم لوگ اتنی سیاست تو سیکھ گئے ہو کہ خود ہی وزیر اعلیٰ بن جاؤ. صحیح یقین کرائے بھاولپور دے وچ دھند آئی لیکن مرشد پاک کو دنیا اندھا دھند دیکھن آئیے. میں نے تو بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اتنی سردی میں آپ لوگ نکلے ہیں کیوں؟ اگر آپ نکل سکتے ہیں تو سانو بہت پائی ہوئی ہے. میرے کو آنکھ لگے اگے تھی وہ تو سٹیج تے چھڑو. پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ جب میں سٹیج پہ پہنچا تو پورے بہاولپور کے لوگوں نے کس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا. یوسف رضا گیلانی او ساڈے دل دا جانی, یوسف رضا گیلانی, یوسف رضا گیلانی, یوسف رضا گیلانی. جنید صاحب یقین مانے میں خود حیران ہو گیا کہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں. جی حالانکہ میں ساری زندگی میں صرف 2 دفعہ بہاولپور گیا ہوں. اچھا جی ایک جب میں وزیر اعظم بنا تھا اور ایک جب ادھر مغل اعظم لگے تھی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا خیال ہے یہ بنا کے چلا گیا تو شامی کسی نے کھینچ کے ادھر کرتی پاؤڑی. دیکھو نا یارا یہ میرے کو پی ٹی آئی دا مستری لگتا ہے. پرابلم کدھرے میں تے انہیں بیچارے نے حل کدھرے ہور کٹ دیتا ہے. بھائی جان سب سے پہلے کتے کے شوق دیکھیں, ویلا کتا دیکھیں بہت اچھا. وہ جنگل کا رستہ ہے میرا خیال ہے, اتھوں شیران ایک سڑک کراس کرنی ہوتی ہے. میرا خیال ہے یار یہ کسی ایم این اے ایم پی اے نے بنوائی تھی. پہلے وہ سرکاری پارٹی میں تھا, اس نے فلور کراس کیا, جس دن وہ دوسری پارٹی میں گیا فنڈ روک دیے. اتنی سی سڑک ہی بنی. سر جی شاید ٹھیکیدار نے سیمپل لگایا ہو. اس رستے سے جو جاتا ہوگا نا یار رستہ ٹھیک ہے کہندے ہوں گے بھائی جی اب ہمیں تھوڑی سی سڑک پکی ہے باقی ساری خراب ہے. زیزی دو پاسے ہی فنڈ مک گیا, پرلے پاسے ارلے پاسے. یاہر دعا پاسے مکے تھے حال ہویا ہے. صرف ایم این اے کے اپنے گھر کے سامنے فنڈ نہیں ختم ہوا, وہیں کا یہ ٹوٹا ہے. سر ہو سکتا ہے کہ صرف کتبہ لگانے کے لیے انہیں کے ٹوٹے تھے بندے کھلار کے باقی دوڑ جاؤ. لگتا ہے کوئی اور سڑک کا تھوڑا سا پیس پاڑ کے تھے سن لئے. اچھا ڈکیتی کی ایک واردات دیکھو, کتنی معصومانہ واردات ہے یہ. یہ پاکستانی فن تعمیر کا ایک نادر اچھوتا نمونہ تمہیں دکھاتا. یہ دیکھ دکھائیں جی. یہ دیکھیں دروازہ ادھر ہے, اس کے سٹیپس ادھر بنا. واہ 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 واہ, ہائے ہائے ہائے. یا پھر میرا خیال ہے بنا کے چلا گیا تو شامی کسی نے کھینچ کے ادھر کرتی پاؤڑی. دیکھو نا یارا یہ میرے کو پی ٹی آئی دا مستری لگتا ہے. پرابلم کدھرے میں تے انہیں بیچارے نے حل کدھرے ہور کٹ دیتا ہے. اب پچھتا بھی رہا ہے, غصے سے نیچے نالی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس نے کھینچ کے پرے کر دیا. دیکھو ذرا یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دروازے کے آگے ہی پاؤڑی بنائی ہو تو ادھر سے سڑک سے جاتے ہوئے وچ کو گڈی وجی ہے تو پاؤڑی ریڑ کے پران ڈر. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دروازے کے سامنے ہی بنائی ہو, پہلے دن گوگے نے پیر رکھا ہو, وہ سمٹ کے ڈر کے سائڈ پہ ہو گئی ہو. یہ ہو بھی ہو سکتا سکتا پاؤڑی سب سے پہلے بنائی اور دروازہ بعد میں لگایا ہو, ڈائریکشن بھول گیا ہو. لو جی میں گل لب لی جی, اس گھر چ سایا ہے. بہت اچھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن اتنی دور سے چلا جاتا ہے اندر. اچھا بھائی جان یہ دیکھیں, یہ تھا آج کا اسپیال. اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.